Buckle up, physics fans. Today we'll dive into, that's right, the fascinating world of rotational dynamics and static equilibrium. We have already braved the exciting realms of torque, angular acceleration, static equilibrium, center of mass and balance, dynamic torque applications, and angular momentum. Now, prepare to be amazed by the conservation of angular momentum. This law reveals the hidden secrets of rotating objects like ice skaters spinning faster when they pull their arms in, planets orbiting the sun in a delicate dance, and many more. So, fasten your seatbelts and let's explore the incredible world of conservation of angular momentum together. Now, when an ice skater goes into a spin and pulls his arm inwards to speed up, he probably does not think about angular momentum. Neither a diver who springs into the air and folds her body to speed up her rotation. Most people, in fact, are not aware that the action of these athletes are governed by the same basic laws of physics that cause a collapsing star to spin faster as it becomes a rapidly rotating pulsar. Yet, in all these cases, as we shall see, conservation of angular momentum is at work. So let's explore these cases. Now, before diving into the examples of conservation of angular momentum, we'll first see कि इस टॉपिक का जन्म कहाँ से हुआ, द ओरिजिन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके, सो कंसिडर कि हमारे पास एक बॉडी थी जिसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था Li. देन हमने उस पर लगाया टॉर्क टाउ. नाउ इट्स एंगुलर मोमेंटम विल चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ for rotational motion. What was the law? The torque we have, the change in angular momentum over the time elapsed, delta t. So delta L is what? LF, the final angular momentum minus the initial angular momentum. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ by using this and this कि जो delta L होगा वो torque multiplied with delta t होगा, और delta is L is what? The change in the angular momentum, that is LF minus Li. और Li को अगर मैं right side लेके जाऊँ तो अपने पास एक इक्वेशन, खूबसूरत इक्वेशन निकल के आएगी Li प्लस टाउ इंटू डेल्टा टी. जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो ये होगा. बट इफ द नेट टॉर्क acting on the body is 0, so this term will goes to 0, or I can say that the final angular momentum will be equals to the initial angular momentum, and this is what is known as the conservation of angular momentum. मतलब एंगुलर मोमेंटम सेम रहा, चेंज नहीं हुआ. कंडीशन क्या है कि अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अगर ये जीरो हो तभी ये चीज हम ये बोल पाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, अदरवाइज नहीं. सिमिलर चीज हमने पढ़ी थी व्हेन कि जब नेट फोर्स जीरो होती है तो हम मोमेंटम कंजर्व कर पाते थे कि जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा वो इनिशियल लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा. वैसे ही it is analogous to this, right? Now we don't consider internal torque in the system because there some will be zero, as we have seen that internal forces sums to zero. Similarly जो internal torque होगा उनका sum zero होगा. तो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर नेट टॉर्क जीरो है इसका मतलब क्या है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है. तो जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. और ये चीज़ें हैं इसके, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड ऑन दिस. सो यहाँ पे है एग्जांपल. तो यहाँ पे एक बच्चा है बैठा हुआ है ऑन अ पियानो स्टूल. दोनों तरफ कुछ मास इसने होल्ड किया हुआ है एंड इट इज रोटेटिंग विद इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा आई. और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये हमें इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इट इज 5.33 kg मीटर स्क्वायर
और जो इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो हमें दे रखा है कितना, 3.72 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या किया इस बच्चे ने, अपने दोनों हाथ आगे ले आया अपने चेस्ट के पास। तो इससे होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंड लेट के जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो बन गया 1.60 kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस के पास आ गया ना ज्यादा मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे इसकी सिस्टम की, या फाइनली जो ये बच्चा है इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी ओमेगा एफ, ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So what I can write that Li is equals to Lf. Li is what? I, initial I times omega I, final I times final omega. Initial I we have 5.33. Initial omega we have 3.72. Initial F is sorry, मतलब फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IF ये अपने पास है 1.60. तो क्या मैं यहाँ से ओमेगा एफ ना निकाल ले जाऊँ, यहाँ से जो ओमेगा एफ आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 12.64 रेडियन पर सेकेंड. इसका मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, पहले कितनी स्पीड थी 3.72, 4 टाइम इंक्रीज हो गई है करीब करीब. तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है द स्पीड विल गोइंग टू इंक्रीज. Now this same physics is applied to a rotating diver or a spinning ice skater. जैसे ही स्पिनिंग आइस स्केटर अपने हैंड इनवर्ट्स करते हैं अपने चेस्ट की तरफ, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. उसी तरीके से डाइवर जब अपनी बॉडी को फोल्ड करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. Now, an increase in angular speed with decrease in the moment of inertia can be observed in nature as well. So let's see some example from the nature. Now, आपने ह्यूरिकेन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा तूफान आता है, समुंदर में ही उठता है, उसके बाद ये मैदानी इलाकों में भी जाता है. होता क्या है कि ह्यूरिकेन क्या करता है, जो एयर होती है ये एयर को अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर्स आए. इसकी तरफ एयर अंदर आती है और जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आते हैं एयर के पार्टिकल, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. जैसे अभी हमने देखा था स्टूडेंट जैसे अपने हाथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास मतलब अंदर की तरफ करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, जिसके कारण स्पीड इंक्रीज हो जाती है. उसी तरीके से जैसे एयर के पार्टिकल्स इट कम्स टूवर्ड्स द सेंटर्स आई, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ विंड हैज़ अ स्पीड ऑफ ओनली 3 mph एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 माइल्स, मतलब कि सेंटर्स मतलब ये इसके आई से अगर मैं 300 मील दूर चला जाऊं तो वहां पे अगर एयर की स्पीड 3 माइल्स पर आवर है, देन द स्पीड ऑफ द एयर at 6 mile from the centers, this would be approximately 150 miles per hour. कितने पे, 6 miles from the center. तो ये हुआ कैसे इंक्रीज, इतनी स्पीड कैसे इंक्रीज हो गई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. एंड ऑफ कोर्स इन दिस एनालिसिस वी इग्नोर्ड फ्रिक्शन व्हिच कुड डिक्रीज दिस स्पीड. But still the basic principle is that the decreasing the distance from the axis of rotation, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से स्टार्ट ये हो रहा है सेंटर से आए, अगर मैं आर की वैल्यू डिक्रीज करूँ तो जो एंगुलर स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है. तो ये चीज़ एक बेसिक मोटा मोटा प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना है कि whenever the decreasing the distance from the axis of rotation implies the increase in speed. This is the basic principle. Now let's see one more example based on this conservation of angular momentum. Now let's move into the space. देखिए जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, it explodes, and after the explosion the star collapses to a fraction of its original size and its moment of inertia decreases and thus its speed will going to increase.
अगर मास ऑफ स्टार अगर ये इट इज मोर देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन, देन जो कोलैप्स है इट मे कंटिन्यू टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार. व्हाट इज अ न्यूट्रॉन स्टार? So neutron star is a star that have a radius only up to 10 to 20 kilometer with incredible high densities. In fact, if you bring only 1 teaspoon onto the earth, it may weigh 1 billion tons. क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. Also, neutron star produces powerful beams of X-rays and other radiations, जिसकी वजह से पूरा स्काई एक लाइट हाउस नजर आता है as neutron star rotates. And from Earth, we see pulses of radiation from these rotating beams, one for each revolution of the star. And these pulsating star or pulsars typically have period ranging from 2 milliseconds to 1 second. और जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसको बोलते हैं द क्रैब नेबुला पल्सर. और यूनिवर्स में इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है एंगुलर स्पीड. ये भी सेम किसी एक स्टार से टूट के बना है ये नेबुला पल्सर, जिसकी एंगुलर स्पीड सबसे ज़्यादा है यूनिवर्स में, जिसकी वजह से ये जो आपको ये लाइट बीम से नज़र आएंगी अगर आप स्पेस में जाओगे तो. राइट. Now let's take an example on this. Now suppose a star has a radius of 2.3 times 10 to the power 8 meter और जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है वो हमें दे रखा है 2.4 times 10 to the power -6 radian per second. This is the angular speed with which the star is rotating और ये उसका रेडियस है. Now suppose उसका फ्यूल खत्म हो गया, so it will going to collapse. Now after the collapse जो रेडियस बचा स्टार का वो केवल इतना बचा, कितना 20 किलोमीटर. तो बताइए उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी. अब क्योंकि यूनिवर्स में तो कोई टॉर्क लग नहीं रही है, नेट टॉर्क स्टार के ऊपर जीरो है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रहा होगा स्टार का दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. सो I1 omega 1 will be equals to I2 omega 2, and we can assume the star to be a uniform sphere. So जो moment of inertia होता है for uniform sphere it is 2 by 5 mr square. Right. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इनिशियल के लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 by 5 mi square is equals to I2 we have 2 by 5 mf या m2 लिख सकता हूँ m2 r2 स्क्वायर और चाहिए ओमेगा 1 तो रह ही गया इनिशियल मल्टीप्लाइड विद द फाइनल ओमेगा 2. एंड वी कैन ऑल्सो अज्यूम कि जो मास है वो चेंज नहीं हुआ है, मास इज नॉट चेंज. दिस विल कैंसिल बोथ द साइड, 2 by 5 भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो फाइनल एंगुलर स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी r1 स्क्वायर डिवाइड बाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द इनिशियल एंगुलर स्पीड. अब इनिशियल रेडियस हमें दे रखा है ये है ri और ये हो जाएगा r2. यहाँ पुट कीजिए इनिशियल ये भी दे रखे हमें. आपको सॉल्व करोगे जो फाइनल एंगुलर स्पीड आएगी वो आएगी 320 रेडियन पर सेकेंड. आप देख रहे हो इनिशियल क्या था 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर -6 रेडियन पर सेकेंड और अब कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. और दिस इज रफली अराउंड 3000 RPM, मतलब एक मिनट में 3000 चक्कर काट जाता है. सो ये क्या है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ पल्सर. मतलब स्टार को हम नाम दे देते हैं पल्सर, जो बहुत तेजी से घूम रहा है उसको बोल देते हैं पल्सर. नाउ एंगुलर मोमेंटम केवल इतना नहीं है, इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द लेंथ ऑफ द डे ऑन अर्थ. मतलब हमें मालूम है कि अर्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर में 1 रोटेशन कंप्लीट करती है. बट अगर कुछ चेंजेस हुए तो ये 24 आवर्स बढ़ सकता है. कैसे बढ़ सकता है इसको हम समझ सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से. Now we saw in a couple of examples that as the moment of inertia increases, the angular speed decreases, or in other words,
एज आई डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज होता है तो ओमेगा इंक्रीज हो जाता है बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये चीज हम तभी लिख पाते हैं जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो सिस्टम के ऊपर, अदरवाइज नहीं। ओके, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे अगर जो पोलर रीजन्स पे जो आइस है अगर वो मेल्ट हो जाए, इट विल कम ऑन टू द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्योंकि सेंटर से दूर है, तो जो मास है वो सेंटर से दूर हो गया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर द अर्थ। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई कैन से दैट द एंगुलर जो स्पीड होगी अर्थ की वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस मीन दैट द अर्थ वुड टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब जो पहले वो 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही थी वो अब शायद 25 घंटे में करे, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज तो ओमेगा डिक्रीज तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज अपने अर्थ को भी इफेक्ट कर सकती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हर जगह तुम देखोगे तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं घूम फिर के एक कॉन्सेप्ट लगा लोगे तुम। So far we have taken examples where angular momentum is conserved. And now a student asks that what about the rotational kinetic energy? क्या वो भी सेम ही रहती है, क्या वो चेंज करती है, कि क्या होता है, वो हम देखेंगे अब। So now let's take a conceptual example on rotational kinetic energy. Now here we have this conceptual example. It says that a skater pulls in her arms, decreasing her moment of inertia by a factor of 2 and doubling her angular speed. हमें ये बताना है कि is her final kinetic energy greater than, less than or equal to her initial kinetic energy. Basically rotational kinetic energy की बात चल रही है यहाँ पे। तो अगर initial moment of inertia उसका I है and initial angular speed omega I है, तो जो फाइनल इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो जो स्पीड है वो 2 टाइम्स इनिशियल हो गई है। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ आई ओमेगा आई स्क्वायर, राइट। फाइनल लिखूं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे कितना हो गया है, 1/2, इनिशियल का आधा हो गया है, और ओमेगा स्क्वायर से 2 टाइम्स ओमेगा आई और इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/2 आई ओमेगा आई स्क्वायर। मतलब इनिशियल का कितना, ये चीज़ क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ 2 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज इन दिस केस, स्टिल द momentum is the angular momentum is conserved but the kinetic energy has increased। और ये इंक्रीज हुई किससे, मतलब सोर्स क्या है उसका। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो किसी ने कुछ तो काम किया होगा तभी तो एनर्जी इंक्रीज हुई। द सोर्स ऑफ दिस एडिशनल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द मसल्स इन द skater's arm as she pulls them into her body। उसके वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, बट जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो सेम ही रहा क्योंकि नेट टॉर्क 0 है। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इज रोटेशनल कोलिजन्स। मतलब कोई चीज़ घूम रही है और वो कोलाइड कर गई किसी और चीज़ से, तब उस केस में हम एंगुलर मोमेंटम कैसे देखते हैं, कैसे कंजर्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। सपोज अ पर्सन वांट्स टू लिसन म्यूजिक फॉर हिज एंटरटेनमेंट, सो ही पुट्स अ रिकॉर्ड, इसको बोल रहे हैं रिकॉर्ड, ही पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल। सो ये है रोटेटिंग टर्न टेबल। सो सपोज कि IT is the moment of inertia for the turntable and omega naught is its initial angular speed, और IR is the moment of inertia for this record जिसके थ्रू आप गाने सुन पाएंगे ना। इसकी इनिशियल स्पीड हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेट डाउन उसको अपने ऐसे पुट कर दिया है रोटेटिंग टर्न टेबल के ऊपर। तो हमें ये बताना है कि जब ये सेम स्पीड पे जब ये दोनों घूमने लगेंगे तो वो ये स्पीड क्या रही होगी। Now here record is dropped straight down on a rotating turntable. Now when the record lands onto the this turntable, frictional forces between it and the turntable causes record to speed up and turntable to speed down until their speed becomes equal, which is omega f here. And क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है,
जो भी टॉर्क है वो इंटरनल है, तो इंटरनल तो नेट उनका हमेशा जीरो ही होगा। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो मतलब आई, यहाँ पे क्या था आई टी, अगर इनिशियल देखूँ तो ये आई टी ओमेगा नॉट था। इसका तो कुछ एंगुलर मोमेंटम रहा नहीं होगा इनिशियली, क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड जीरो है। दिस वुड बी इक्वल्स टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा, आई टी प्लस आई आर इंटू ओमेगा एफ। और यहाँ से अगर मैं ओमेगा एफ लिखूँ तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा आई टी ओवर आई टी प्लस आई आर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा नॉट। एंड क्योंकि ये कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी इस केस में, बढ़ेगी या घटेगी, इट विल डिक्रीज, क्योंकि इनइलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, रोटेशनल कोलिशन के ऊपर। सो ये है हमारे पास एग्जांपल। तो यहाँ पे है मेरी गो राउंड, एंड यहाँ पे ये बच्चा है, ये इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द मेरी गो राउंड, एंड बच्चे का जो मास है ये हमें दे रखा है 34 किलोग्राम, and it runs with a speed of 2.80 meter per second, and this speed is tangential to the rim of a stationary merry-go-round. Also, the moment of inertia of the merry-go-round is given to be 512 kg meter square, and the radius of the merry-go-round is 2.31 meter. Now, when the child jumps onto this merry-go-round, the entire system begins to rotate with angular speed omega. Now we have to find that what is the angular speed of the system. We can ignore the friction and any other type of external torque. Okay, since external torque is ignored, so momentum, the angular momentum will be conserved here. So अगर मैं system को मान के चलूँ, system क्या है, ये पूरा अपना system है, तो इसका जो initial angular momentum रहा होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये तो rest पे है initially अपना मेरी गो राउंड, it will only because the angular momentum is only because of this child. सो ये क्या होगा, क्योंकि ये टेंजेंशियली इसके मूव कर रहा है, और ये अपने पास ये हो गया एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जैसे यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली आप इसको एक पॉइंट मास मान सकते हो, और पॉइंट मास के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे, एम आर एम इंटू वी, लाइक दिस। रेडियस इज 2.31, मास हमें दे रखा है 34, एंड वी हमें दे रखा है 2.80। ओके, सिमिलरली अगर तुम्हें फाइनल निकालना हो तो फाइनल क्या होगा, अब क्योंकि ये दोनों एक स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं ओमेगा, तो फाइनल जो होगा वो होगा आई ओमेगा, ये तो हो गया मेरी गो राउंड का प्लस, और जो ये बच्चे का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आर एम वी। एंड क्योंकि ये इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ आर, और ये सर्कुलर मोशन में है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हम लिख पाएंगे, m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और अगर मैं ओमेगा यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन ये बच जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, तो ओमेगा की जो इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, आर एम वी डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। अब अगर हम ये अब जैसे एक स्पेशल केस लेके चल रहे हैं, अगर आई ज़ीरो है, आई ज़ीरो का मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो है मेरी को राउंड का, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या आएगा, आर एम वी डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, एम एम कटेगा, आर आर कटेगा, वी बाई आर आ जाएगा बेसिकली, जो कि है भी सही, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था। ओके, तो बट एक्चुअल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ओके, just plug the values, you'll get omega to be 317 रेडियन पर सेकेंड, और अगर आप इसकी लीनियर स्पीड देखो तो वो करीब करीब आ जाएगी 0.732, जस्ट इसको r से मल्टीप्लाई कर दो इतनी आ जाएगी। तो आप देख रहे हो इसकी लीनियर स्पीड डिक्रीज हो गई है, 2.80 थी पहले बच्चे की स्पीड, अब कितनी हो गई है 0.732। और ये डिक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो तुम्हारा कंजर्व रहेगा ही रहेगा इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियली इसके पास तो कुछ मोमेंटम था नहीं, बट फाइनल में इसके पास भी कुछ मोमेंटम है, तो वो मोमेंटम आया कहाँ से, इसने अपना मोमेंटम इसको दिया, ताकि नेट हमेशा सेम ही रहे, टोटल जो रहे वो सेम ही रहे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
So with this, we're going to end this video, and in the next video, we'll see the vector nature of angular momentum, and also we'll see the rotational power and little bit stuff. So अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.